Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat. Welcome to my live session. So before going live, let me just go on different platforms and see who's live with me. And at the moment, those of you who are watching, you can always let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So till you write that, whoever is watching, um, I'll just be back. And before that, let me mute every other thing which is on, so I don't have any kind of distraction while I'm live. Okay, so here I go, and here I have switched everything off, and the other side as well. So Ali Alwani, hello to you too. I hope you're fine, and it's been long since I've seen you over here. Okay. So actually, you know what? I can't switch on to other platforms for the reason my system is probably being jacked and it's lagging. So it's better not to then shift myself to other platforms because it's not going to help me then. Okay. Well, I can still see myself over here. And okay, so tell me, what do you think about today's topic? I wrote caption what I plan to discuss. So let me know about it. What do you think about it? Do you think that's the scenario? Because I think this is something which is very crucial, and many organizations and many businesses they are facing these things. So that's the reason I want to talk about this thing and provide an insight, some personal insight, some tips in order to cater these problems. Okay, um, okay, Ali Alwani, you can text me such messages into my Facebook inbox. Not over here, because when I'm live in the session, if you ask such messages, they're just going to be communicated quietly, and everyone can view these messages. So you can always, go into my inbox and then write over there, not in this live session. Okay. Um, uh, but let me just go through your message. Okay. Right now my father, he's stable, and he has a long history of illness, and that too um, in recent years. So probably I'll just talk with you on Messenger. But for the time being, thank you so much. No help is required in any scenario. So he's been taken care of, and he's pretty much stable. So ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद माई सेशन एंड जिस तरीके से मैं आपसे जो है पहले भी बात की थी कि आजकल का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है और जो क्राइसिस है उससे हर इंसान परेशान है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्पेसिफिकली जो है लोग हैं या स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो परेशान है, नो, it's something which is universal and everyone is facing it, whether it's an individual, whether it's a common man, whether it's a businessman. Similarly the organizations हैं वो भी जो यस वो ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा जो है हाई टू डू हैं उनको एज सच इश्यूज नहीं है, दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम्स कॉज दे आर ऑपरेटिंग क्वाइट वेल। बट येस देन अगेन जो लोअर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्मॉल बिजनेसेस है, दे आर प्रिटी मच बीइंग इफेक्टेड बाय सच क्राइसिस। So only or then again it's not just about their business, it's also about many other things. So today I want to talk about the workers and the staff, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है क्या मुश्किलात फेस आ रही हैं, या इवन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या मुश्किलात फेस आ रही हैं। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी वजह से बहुत जो एम्प्लॉई रेट है वो अब बहुत अनप्रडिक्टेबल है। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं व्हेन दे फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी दे जस्ट simply go away without telling the organizations or the people who are running it. Obviously they have their own concerns, but then जो organizations हैं या small businesses हैं obviously उनका भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। But then there are certain organizations who are not considering their own नुकसान, but rather they are looking at the scenario कि how they can
facilitate the employees. So today I want to talk about these employees कि what are the strategies और how can you motivate such employees ताकि जो है जो टर्न ओवर रेट है वो कम हो सके एंड both the organization owners and the employees they can benefit from each another. या ये है कि कुछ ऐसा जो है कर सकें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेनिफिट कर सकें. सो उसमें जो है जो सबसे नंबर वन थिंग है दैट इज़ एज एन ओनर एज अ बिजनेस ओनर जो कम्युनिकेशन है दैट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट. क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तब तक जो है मसले मसाइल हल नहीं होंगे. अब कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट किस तरह हो सकती है? Like you need to have an open dialogue with your employees. If you're an owner, you need to tell your employees कि okay business की इस वक्त ये situation है, ये economic crisis है and this is what we are going through. अभी जो है क्या होता है बट अक्सर ये होता आया है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो ओपन नहीं होती है. आप अगर जो है एज एन एम्प्लॉयर आप अगर जो है ये इंप्रेशन दे रहे हो कि एवरीथिंग एट माई एंड इज़ वेल एंड नथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग इज़ सुपर डू. सो उसमें क्या होता है उसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो दैट रिजल्ट्स इन डिमोटिवेशन या डिप्रेशन या एंजाइटी. सो उसका भी एक जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के चले जाती हैं. सो सबसे पहले आपने क्या करना है बीइंग एन एम्प्लॉयर येस इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू टेक योर एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड एंड टेल देम दी रियल लाइफ सिचुएशन. क्योंकि अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन नहीं बताएंगे तो सिनेरियो और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे. तो फॉर दैट ओपन कम्युनिकेशन रखें. अब ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है यू बीइंग द ओनर हो सकता है कि एक एम्प्लॉई आए दो एम्प्लॉई आए या एज अ ग्रुप में एम्प्लॉई आए बट देन यू हैव टू टैकल ईच एंड एवरी वन एंड एड्रेस द कंसर्न्स. सो फॉर दैट द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट. सो ये तो होगी नंबर वन चीज़. देन इसमें जो है एक और क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना दैट ऑलवेज बिल्ड्स ट्रस्ट. अब आप देखें कि बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें जो है ओपन डोर पॉलिसी नहीं होती. इट्स मोर ऑफ अ क्लोज डोर. दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है क्लोज डोर और ओपन डोर से आई एम श्योर आप आसानी से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि व्हाट आई मीन. सो जितनी जो है चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट होती हैं ऑब्वियस होती हैं उतना जो है आप में और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. अगर जो है थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लोज डोर्स एंड एवरी थिंग इज़ डिस्कस बिहाइंड द डोर्स सो द एम्प्लॉयज़ वुड नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ऑब्वियसली जो चेंजिंग जो है माइंड्स हैं या चेंजिंग एक्सप्रेशंस हैं फेस एक्सप्रेशंस हैं उससे भी काफ़ी हद तक जो है पता चल जाता है. बट रादर देन जस्ट बीइंग क्यूरियस या जस्ट grasping the different interpretations via body language or anything like that, it's always better to go and talk to the person directly rather than कुछ भी presume करने के लिए. So it's always better not to be judgmental because you don't know कौन किस सिनेरियो में. You always have to go and ask and then you'll come to know okay ये situation है and this is how you can handle. So the number one thing is you need to communicate transparently. Then आपने जो है एक और जो चीज़ आप इसमें कर सकती हैं you need to provide regular updates again, updates regarding success, updates regarding regarding how the organization is navigating in the crisis because everything it's going to help the employees. बिकॉज आप जो भी कर रहे होगे दैट इज़ गोइंग टू आपका अगर मकसद है कि आपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना है तो यू हैव टू कीप इट not only transparent but rather you have to provide regular updates. क्योंकि जब आप updates दे रहे होते हैं again वो भी एक trust build कर रहा होता है and then you don't hold yourself accountable cause everything is open and the employees know okay भाई organization में जो है इसको ये हो रहा है ये scenario है and this is how you can cater for the problems and come to a resolution regarding such problems. जान मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन थैंक यू. देन इसमें आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं कि यू एज अ पर्सन यू नीड टू शो एम्पैथी बिकॉज
वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर इमोशंस नहीं होते वहाँ पर तो वैसे ही टर्नओवर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है. सो एज अ एम्प्लॉयर यू हैव टू शो एम्पैथी, यू हैव टू बी able to listen to what the employees are saying. उनकी से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप जो है एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनेंगे, यू विल नेवर नो, मे बी उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से आपको जो है बहुत अच्छी जो सजेशन मिल जाए विच कैन हेल्प यू रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर, या जो प्रेजेंट सिनेरियो आपके पास है. so you have to be very patient while listening to the employees, and with mutual collaboration and mutual um, understanding and facilitation, you can come to some kind of consensus regarding a problem which you are facing. So never think कि भाई employees जो है आपके मातहत हैं and they can't come up with any good suggestions or advices. There is so much talent in employees. I personally know, because I have experience of many people who were in the employee um, as employees, or they used to have such brilliant ideas, और वो ideas आपको जो है you can apply those ideas and they are really practicable and they work. So as an employer you need to take heed of what your employees are saying, because not every employee is selfish or just taking their own self at the forefront, या वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते कि हमें इससे क्या benefit मिलेगा. There are such employees who are looking for the success of the organization. So those are the real employees. और ऐसे जो employees होते हैं they are assets, यानी जिस तरीके से आप किसी एसेट में जो इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द वंस इसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर द वंस जो कि जो है आपकी सक्सेस से जो है बहुत खुश होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं. और अगर जो है आप के ऑर्गेनाइजेशन को किसी किस्म का नुकसान हो रहा होता है तो दे आर द वंस हु कम फॉरवर्ड एंड टेल यू विदाउट एनी विदाउट एनी देयर ओन मोटिव, और वो जस्ट एज इट इज़ ही एज एम्प्लॉई, और आपका खैर हुआ आपको जो है because they're your well wishers, they're going to tell you certain things या suggestions दे देंगे. So you have to have an active listening thing, and you have to be empath, and you have to listen to what your employees are saying. और देन उसमें जो है इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि यू कैन ऑलवेज इम्प्लीमेंट स्पोर्ट्स सिस्टम्स फॉर द एम्प्लॉयज़. और वो स्पोर्ट्स सिस्टम्स कौन से होते हैं जिसमें जो है उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा सके, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो टर्नओवर तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा. कुछ जो है बीमारी की वजह से भाग जाएंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है काम छोड़ देंगे. देन देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज. सो मेंटल हेल्थ इज़ अ नेसेसिटी, एंड एज एन ओनर यू नीड टू फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉयज़. अब हर बिजनेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ तो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ भी हो सकते हैं, बट येस दोज हु आर डूइंग स्ट्रेनस जॉब्स, या जिनके जो है 9 to 5 वर्किंग आवर्स हैं, या मे बी 24 आवर्स में से जो है दे आर वर्किंग फॉर 20 और 18 आवर्स, या इवन जो है 12 आवर्स भी वर्क करें, तो इट्स अ लॉट ऑफ लोड. और उस लोड में जो है इट्स नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक लाइक दोज. अगर हम जो है ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करते हैं, तो ग्रॉसरी स्टोर्स में जो राइडर्स होते हैं या जो डिलीवरी पर्सन होते हैं, उनकी अच्छी खासी मुश्किल जॉब होती है, लाइक टेकिंग द ऑर्डर ऑन एन ऐप एंड देन डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर विद इन अ सर्टन टाइम पीरियड, एंड देन आगे से कस्टमर अच्छा है, बुरा है, सख्त है, बदजुबान है. सो दे डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ क्रैप. अब किसी भी नॉर्मल इंसान का जो दिमाग ख़राब हो जाता है किसी की भी ना चाहिए जो है बक बक सुन के या फाउल लैंग्वेज सुन के या खामखा के जो है मिसबिहेवियर से. सो दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट AIs ओवर हियर. सो एज अ रिजल्ट मेंटल हेल्थ इज़ अ नेसेसिटी, और उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए. जो आपके बैक एंड पे एम्प्लॉयर्स हैं, दे हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि extensive work hours, they are always going to affect the mental mind. So they can make special efforts regarding they can provide some kind of health resources, या कोई जो stipend provide कर दे, या
इसमें जो है आजकल की जो नीड ऑफ द टाइम है, हाइब्रिड वर्किंग इज़ it's very in and it's very much it's successful as well, because when you're working all time, if you're working in a physical environment, that gets more to your mental health. But then remote working भी आप उसमें जो शामिल कर सकती हैं. Some days of the week you can work online and some days of the week you can work in a remote setting. और देन उससे जो है then if any employee needs any kind of leave, so you can aid, additionally you can aid that leave, because if the employee is going to work 365 days a year without any breaks, वो तो खैर मेरा ख्याल है काम ही तमाम कर देंगे. यहाँ तो हम सिर्फ अभी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, फिर इसमें एक और जो चीज़ की जा सकती है कि यू नीड टू रिकगनाइज एंड रिवॉर्ड एफर्ट्स. अब क्या होता है कि रिकग्निशन, ये जो काम है ना, जो लेबर का काम है या डिलीवरी बॉयज़ का है या फिर बेस ग्रास रूट लेवल का जो है जो काम है, दिस इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब, और इट्स मोस्टली पीपल दे डू नॉट recognize. अवार्ड तो दूर की बात है ना, recognize भी नहीं करते. सो एज अ ह्यूमन बीइंग यू नीड टू recognize दी अचीवमेंट या जो परफॉर्मेंस जो है लोग कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट दें. मोटिवेशन जो है किस तरीके से होती है, और आप अगर चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉई जो है आपके साथ रहें, कई साल तक रहें, ऑब्वियसली हर एम्प्लॉई ने किसी ना किसी स्टेज पे तो जो है जाना ही होता है. बट देन जो टाइम आपके साथ गुजारना है, दैट शुड बी अ वेरी रिमेम्बरेबल टाइम एंड पीपल शुड फॉर्म गुड मेमोरीज. सो for that purpose you need to recognize whatever the employees are doing. If their performance is good, appreciate that. और वो appreciate, like it isn't necessary कि आपने हमेशा जो है पैसों में जो है appreciate करनी होती है. There are so many other things you can always go for परफॉर्मेंस अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं. उसमें जो है रिवॉर्ड्स में यू कैन डू मैनी थिंग्स, लाइक आप जो है किसी को जो है मंथली जो है मोबाइल का जो है डाटा पैकेज करवा कर दे सकती हैं, या से कोई ख़ास अमाउंट आप जो है फ्यूल की रख सकती हैं, आप फ्यूल दे सकते हैं. देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. अगर जो है लाइक यू कैन गिव देम rations फॉर 1 month. इट ऑल डिपेंड्स कि परफॉर्मेंस पे आपने जो है किस किस्म के जो है पैकेजेस जो है लॉन्च किए हुए हैं. बिकॉज ये वाली जो सारी परफॉर्मेंस पैकेजेस हैं या वैसे भी जो पैकेजेस होते हैं, अगर हम ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करें तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान वो तो आप लॉन्च करते ही करते हैं. यू गिव इट टू द पीपल हु आर इन नीड. सो अगर आपके एम्प्लॉयज़ हु आर इन that strata and they need it, so then you can give it in the form of stipend or performance reward. Okay, and it all depends कि भाई performance किस level की है. So you can add these things into the salary and rewards. देन इसमें जो है आप एक्नॉलेजमेंट, एज आई सेड कि एक्नॉलेज करने के भी तरीके हैं. सो दिस इज़ वन वे कि आप अप्रिशिएट करें वट एवर योर एम्प्लॉयज़ आर डूइंग. इफ दे आर डूइंग अ गुड जॉब, तो यू अप्रिशिएट दैम, यू अपलॉड दैम. और जिस तरह जो है पास जो है वर्क इन्वायरमेंट्स में लाइक देयर इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक. तो इस तरह के भी जो रिवॉर्ड्स होते हैं, दे ऑलवेज they always come in handy and they benefit you as an employer, and they motivate the person who is doing the work for you. So these are really good strategies which work. um, then reward program में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि other than employee of the week, you can just extend them some kind of vacation, और उसमें जो है कोई उनको जो है किसी किस्म की जो है ऑफ टिकट्स दे दें, विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम. और else whatever is in your budget, you can plan that trip and you can just give it to them and extend your offer. Okay, these things that this person has shown so much performance in the past week or the past month or a year, तो उसके मुताबिक आप उनको जो है एक वेकेशन भी जो है ऑफ़र कर सकते हैं, and you can pay for that vacation.
अच्छा देन जो है आपने जो है और आप क्या कर सकते हैं, यू नीड टू फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जिसमें जो है पॉजिटिविटी होती है उसमें जो है जो टर्नओवर रेट है वो बहुत कम रहता है। एंड वो इन्वायरमेंट जिसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और हर वक्त जो है टेंशन होती है, हर वक्त स्ट्रेस होता है, उसमें जो है एम्प्लॉयज़ की लीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर पॉजिटिव इन्वायरमेंट जहाँ तक हो सके। ऑब्वियसली नो वंस परफेक्ट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गलती हो जाती है, बट देन यू हैव टू हैव अ वेरी काम माइंड, because if you are in that supervisory role you have to have a calm mind. If you are simply going to give away and you become stressful yourself and you just lose it, so उसमें जो है you won't be able to retain the employees. So अगर if you want to retain the employees you have to keep a calm mindset instead of getting into stress yourself. अच्छा फिर इसमें जो है एक और जो आप कर सकते हैं पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में, you can always give certain workshops or training workshops. अब ये जो workshops है it's not necessary they have to be physical. You can have a Zoom meeting or a virtual meeting and then you can give them certain tips regarding whatever their work environment is, या वर्क का उनका जो भी सिनेरियो है, तो यू कैन प्रोवाइड दोज ट्रेनिंग्स वर्चुअली। और इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं, एंड देन यस वर्चुअल मीटिंग्स में यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट, क्योंकि आप अगर ये देखें कि ऑफिस में भी जब आप मीटिंग करते हैं या वो लोग जो स्कूल वर्किंग इन्वायरमेंट में हैं, दे वुड ऑलवेज नोट कि भाई मॉर्निंग के टाइम एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो आपके फैसिलिटेटर्स हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिगार्ड सर्टेन टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड दिस एंड दैट। तो वो जो एक मॉर्निंग अप्रेजल है दैट स्टार्ट्स योर डे विद अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट and it keeps you energetic all day long. But then if the morning begins with a scolding and with the nagging, you didn't do this, you didn't do that, and the customers were complaining this and that, so that is not going to retain your employees at all, and it's not going to motivate them, rather it's going to demotivate them. देन मोटिवेशन की और लोगों की भी जो है अगेन किस्में होती हैं, बिकॉज देर आर सम पीपल हु टेक थ्रिल व्हेन दे आर डीमोटिवेटेड। नाउ आई डोंट नो ये किस किस्म के लोग होते हैं, बिकॉज आई नो आई एम नॉट दैट काइंड। आई एम नेवर मोटिवेटेड इफ समवन डिस्करेजेस मी और इफ समवन क्रिटिसाइजेस मी, दैट्स नॉट माई नेचर। सो आपकी जो नेचर होती है यू ट्राई कि भाई आप अपनी नेचर के मुताबिक ही जो है जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उसी तरीके से जो है ट्रीट करें। सो आई वुड ऑलवेज मोटिवेट whoever is in my work scope or whoever I'm mentoring. So I just try to keep it motivational rather than demotivating anyone. So वो लोग जो डिमोटिवेशन से खुश होते हैं, आई डोंट नो उनका जो है सिस्टम किस तरह वर्क करता है, मे बी दे टेक डिमोटिवेशन एज अ चैलेंज, एंड मे बी वो डिमोटिवेशन को जो है ना यानी दे आर जिस तरह जो है फेलियर्स को लोग अपने लिए जो है चैलेंज लेते हैं। वेल फेलियर इज़ अ चैलेंज, इट प्रोवाइड्स यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बट जो डिमोटिवेशन है आई हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक कि डीमोटिवेशन आपको जो है ना कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या वो आपको जो है इट गिव्स यू अ चैलेंज, बट देन पीपल टेक इट एज अ चैलेंज। सो एक और जो आप इसमें चीज़ कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके से हो सकती हैं कि यू हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज पर द स्कोप ऑफ वर्क, उससे उसके मुताबिक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, एंड यू कैन आउटसोर्स दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और इन हाउस इफ़ यू हैव टेक्निकल पीपल और एक्सपर्ट पीपल इन सर्टेन एरियाज़, या अगर एक्सपर्ट्स भी यानी एक्सपर्ट्स की भी वैरायटी होती है, देयर कैन बी एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बट देन देयर कैन बी एक्सपर्ट्स जिन्होंने एक लाइफ गुजारी होती है, उस सिनेरियो में एक लाइफ उन्होंने गुजारी होती है। लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर, तो उसमें जो है द सुपरवाइजर्स ओवर देयर दे हैव अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस।
सो आप जो है यू कैन ऑलवेज आस्क दोज सुपरवाइजर्स टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ या जो उनसे जूनियर हैं. सो उसका जो है फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द पीपल हु आर जूनियर देन यू, तो they learn, they are able to resonate because you might be at a different stage in your life, but then वो जो juniors हैं, वो जो start कर रहे हैं, जो employees हैं, they might be at a different stage, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पहलू होता है जो इंसान अपने साथ लिंक कर सकता है और फिर उससे वो एक्सेल कर सकता है. So motivation and growth prospects, these are really, they go hand in hand. आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप जो है सिर्फ जस्ट मोटिवेट करते रहें पर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ना दें. सो यू हैव टू कीप बोथ थिंग इन बैलेंस. और जब तक आप जो है एक बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू रिटेन योर एम्प्लॉयज़. अच्छा, देन इसमें जो है एक और जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ यू नीड टू एम्पावर द एम्प्लॉयज़. अब वो एम्पावर किस तरह कर सकते हैं, लाइक certain jobs require certain kind of employees and not every kind of employee can do every kind of work. But then again इस scenario में it is how you are using the strategies or how you're working with your employees. So the best is, if you want to empower your employees, you need to put them in that scenario. You need to delegate the powers, even if it's for a day or two. जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं, मैं आपको अक्सर जो है बच्चों के एग्जांपल इसलिए देती हूँ बिकॉज दैट्स द सिनेरियो which I have applied, like when I was dealing with different children, या even my own children. So जब आप उनको जो है डील कर रहे होते हैं, तो how you are grooming them stage by stage and what are the techniques or strategies you are applying from a parental point of view या from an educationist point of view. तो कि these are the things, अब ये इनकी ये एज ब्रैकेट है तो आपने इसके मुताबिक इनको ग्रूम करना है. सो इन द सेम वे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, take them as your own children because you want to see them excel. So if you want to see them excel, you are going to offer them the same level of training and same level of advice. और वो एडवाइस ये है कि you start delegating certain powers to them, provided you know कि उसमें जो है वो गलती करेंगे and there are going to be blunders. You have to be ready for those blunders. For that you have to have a very calm mind. आपके nerves जो है ना आपका साथ देने चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है जो इस तरह के वर्क इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें नर्व्स ख़त्म हो जाते हैं. सो आपने नर्व्स अपने ख़त्म नहीं करने. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. जिस तरीके से आप बच्चों के साथ पेशेंट होते हैं, उसी तरीके से आपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज दैट इज़ योर एक्सपीरियंस जो आप उनको इम्पार्ट करना चाह रहे हैं एंड दे आर इन दैट लर्निंग फेज. आपके लर्निंग फेज कई सालों पहले ख़त्म हो गया था. नाउ यूर इन दैट फेज कि यू कैन मेंटोर पीपल. तो जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यू आर मेंटोरिंग देम एंड यू आर टीचिंग देम न्यू थिंग्स. और उसके लिए जो है यू कैन डेलीगेट देम डिफरेंट पावर्स या डिफरेंट आप जो है उनको काम दे सकते हैं, मल्टी टास्किंग उनको करा सकते हैं, जस्ट टू सी विच एरिया दे आर मोस्ट परफेक्ट इन. सो जिस एरिया में जो है वो ज़्यादा उनका दिमाग काम करता है या वो ज़्यादा स्किलफुल है, यू कैन ऑलवेज डेलीगेट दैट एरिया टू देम. और इस तरीके से जो है उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे वुड वांट टू डू मोर एंड मोर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देन एक और जो आप कर सकते हैं, then you need to encourage innovation. Of course innovation, it's not necessarily innovation is just coming out of your mind. Innovation can come out of anyone's mind. It can be your employees, it can be your children, it can be anyone. So you have to create an environment जहाँ पर employees feel कि we are respected, we are heard, and we can come up with our ideas and our suggestions, and it's going to be taken well noted, and people are going to accept it, or the owners are going to listen to it. They are not just going to give you a shut up call or say you're the employee, you don't know about this, you don't know about business. It's not necessary. अगर आपके पास MBA की डिग्री है और एम्प्लॉई के पास MBA की डिग्री नहीं है, it does not mean कि you being an MBA can have all the innovative ideas. Anyone can have innovative ideas. So it is something I would say with time, like everyone is born with this creative faculty, this creative imagination, or
solving issues uh, talent. But as we grow और एज वी एज, तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो एजुकेशन है, दैट टेंड्स टू एलिमिनेट दोज और मिनिमाइज दोज टैलेंट्स. But then if you are, you know, not in that particular kind of environment, if you have this power of thinking and power of pinpointing a problem and coming at a solution, so it can be by, you know, it can come to anyone. So you don't have to be a degree holder to have that innovation capability. Anyone can have it. अच्छा, फिर इसमें जो है अलीशा, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड योर कमेंट. आसिफ अली, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, फिर आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन द मिशन. योर मिशन, जो भी आपका जो है गोल है, इट हैज़ टू बी पर्पस ड्रिवन. एंड यू नो, यू हैव टू रिमाइंड योर एम्प्लॉयज़. ऑब्वियसली जब भी आप किसी को जो हायर करते हैं, यू डू give them certain kind of pamphlets, or if you have any kind of document regarding your, you know, certain project या business या organization, so you give them that, or that you know, pamphlet to read. But then अगर जो हम employees की बात करें या हम writers की बात करें, maybe they are not that well to do, तो उसमें जो है you can always, you know, tell them, because what you tell them and what they hear, they're going to, you know, it's going to have an imprint in their mind, and they're going to remember it, because if they're not, they can't read it, if they are not basic literate. So this is for those kind of employees. So you can always, you know, आप उनको क्या बता सकते हैं, or you can, you know, just record in the form of a presentation, or it can be an audio recording, and they can listen to it and they can understand. So it all depends कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं. If you're using local language, well and good, or if you're using English language, it's totally up to you. So you need to have multiple languages, regional languages maybe to translate करें, and then the pamphlet or the guide, it has to be in different languages. ऐसी languages जो कि it's well interpreted or well understood by people. अच्छा, देन जो आपके गोल्स हैं, दे हैव टू बी शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड यू हैव टू, यू नो, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड प्रोग्रेस. जब आपके जो है गोल्स अचीव होते हैं, एंड देन वो भी जो है परफॉर्मेंस पे आता है, व्हाट इंसेंटिव्स यू आर गोइंग टू गिव टू द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे अचीव दोज गोल्स. और इन द एंड जो है, जो मेरा नहीं, अभी मेरे 2-3 पॉइंट्स और हैं. यू नीड टू लीड बाई एग्जाम्पल. अगर आप सिर्फ जो है बोलने का काम कर रहे हैं, एंड यू नॉट डूइंग एनीथिंग इन प्रैक्टिकल, so you're not leading by example. People tend to follow you when you do things. In reality, when you are in action, if I keep on saying or saying different things to you and I don't practice those things, so it would be all words and nothing practice. So I have to, like, I have to be in this in this action kind of thing, and I have to practice it. And whatever I'm doing and you are looking, then you know, okay, this is what I'm doing, and this is what I'm practicing, and this is what I'm teaching. So अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपको फॉलो करें, तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. And that's what's necessary in every part of life. It's not just a job, it's not just an organization, it's practically in every area. It's in your personal life, it's in your professional life. तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रही हैं, यू हैव टू एक्ट एज वेल, नॉट जस्ट वर्ड्स. अच्छा, देन जो है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू, यू नो, फोकस ऑन सर्टन wellness programs, और उसमें जो है financially you have to, you know, contribute in it, cause you know, there are certain times when employees, you know, when it comes to health, they don't have those specific kind of finances. So as an organization, if you are a good organization, you can always, you know, invest in your employees. और इसके अलावा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टीच दीज in the form of training programs to your employees, so they also know what financial literacy is, how they can, you know, utilize their savings or their salaries in a certain
amount of financial assets and how it's going to work in best for them in future. And then even financial assistance के लिए भी you can always offer certain programs or grants, or you can even offer financial assistance for those employees who are not well to do or who are mediocre. So you can offer those assistantships or grants to their children. So this is another thing which you can do as an employer, and it motivates the employees as well. And then again इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है which is very important, and I usually cover this in every session, which is you. अच्छा चलें मैं पहले बताऊँ, आप मुझे बता दें क्या चीज़ हो सकती है. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, so let me know वो चीज़ क्या है जो कि मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ होनी चाहिए. Alicia, you're saying sorry for late joining your session. So good for motivation. I listened to saying about appreciate work to employees, hard and good working. Then take award of month and year. Yes, thank you so much. That's what I'm saying. And yes, employees need to have appreciation, and it's the ये ज़िम्मेदारी है एम्प्लॉयर्स की कि वो जो है एक्सटेंड करें ये कर्टसी अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दे फील गुड. ओके, एंड यू आर सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट टू अवार्ड मंथ एंड ईयर. I already got that. That's really good. That's really good, Alicia. Because whatever strategies I tell people here in this session, these are all आजमाई हुई strategies, and these are all strategies which work. बट कॉज ये जो सेशंस होते हैं या ये जो स्ट्रैटेजीज होते हैं, नॉट एवरी वन नोज अबाउट दी स्ट्रैटेजीज. द मोर you are out into the world, the more you are interacting with people or you're working with people, only then you are you know about certain strategies. Otherwise mostly people don't know about certain these strategies. um, but then that is really good because you're working abroad and you're working in an international company, so you know about these strategies. और ये तो जो है देखें कोर्ट हो जाती है ना, गवाही आ गई ना कि भाई मैंने एक बात की और आपने उसकी गवाही दे दी कि yes you got this. So this is a workable thing, and this is for today's session. It's particularly for those who are not really well to do businesses, या लो लेवल पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉय हैं उनके इन द फॉर्म ऑफ राइडर्स या ग्रॉसरी स्टोर्स, एंड बिकॉज दीज आर स्मॉल बिजनेसेस. अगर आपके जो है सेक्टर में जो है दो दो तीन तीन मार्ट्स होते हैं, सॉरी अबाउट दिस कॉल, सो अगर दो दो तीन तीन मार्ट्स हैं तो दीज आर स्मॉल बिजनेसेस. सो through these sessions, these live sessions, I hope I'm able to communicate my message and strategies across the board, so people can benefit from them as well. Okay, so जो मेरा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ यू नीड टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस. बिकॉज विदाउट मेंटेनिंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस आप ज़्यादा देर जो है कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर सकते. सो इवन इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, आपको जो है फोकस करना है अपने वर्क आवर्स पे. एम्प्लॉयर हैं आप, तो आप फोकस करें कि भाई आपके जो वर्क आवर्स हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं कि जो आपका एम्प्लॉई है वो एक रन अवे स्टेट में आ रहा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. एंड देन उसमें जो है यू हैव टू ऑफर फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट. और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट ऐसे ही हो सकता है कि कुछ दिन जो है मेक इट एन हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्क सिनेरियो. कुछ टाइम जो है ऑन बोर्ड कर लें या इन ऑफिस कर लें, और कुछ टाइम जो है घर से कर लें, रिमोट वर्किंग सेटअप में करें. एंड देन यू नीड टू हैव ब्रेक्स एंड डाउन टाइम्स. अक्सर मैं जो हूँ ऑफिस में भी देखती हूँ कि दे डू नॉट गिव एम्पल टाइम फॉर ब्रेक और रेस्ट. कंटिन्यूसली यू आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी है, फिजिकल हेल्थ वैसे ही ख़राब हो जाती है बैठ बैठ के. सो यू नीड टू हैव these breaks and downtime, and it always helps everyone. तो obvious भी सिनेरियो में है, इवन अगर आप जो है सिर्फ जस्ट रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट
रहे हैं, अगर उसमें भी जो है आप आराम नहीं कर रहे, आप ब्रेक्स नहीं ले रहे, आप डाउन टाइम नहीं ले रहे, तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू गेट टू योर हेड. So this is all what I wanted to share today. And now, if you liked today's session, so you can let me know via your emojis whether you like today's session. And अगर आपको जो है आज का सेशन समझ आ गया हो, और अगर उसमें कोई क्वेरी है, कोई किसी किस्म का जो है आपको लगा है कि भाई नहीं ये सही नहीं था, तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो एज वेल. So and now, is there anyone who wants to come at the top of my screen? जिसको अगर स्क्रीन पे आना है तो मुझे बता दें, और अगर नहीं आना तो आई जस्ट वाइंड अप टुडे सेशन, और इंशाल्लाह आई मीट यू ऑन मंडे. एंड मंडे को आई हैव अ सेशन. और इन द मीन टाइम अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो यू कैन ऑलवेज पोर इन योर सजेशन एंड कमेंट्स इन माई इनबॉक्स, और इधर लाइव चैट में भी आप डाल सकते हैं. और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू इट एंड डू लेट मी नो अबाउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड इन्जॉय योर वीकेंड utmost as you can. So inshallah I'll meet you on Monday. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.